हरे कृष्णा। शुभ सवेरा सबको। ये सवेरा शुभ कैसे हुआ? क्योंकि रात्रि का अंधकार सूर्य के उदय होने से हो गया। और कभी जब घर में अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं आती है, तो हम फिर इस टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे घर में भी हमारे उजाला हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि शुभ सवेरा भी हो गया, घर में भी उजाला है, लेकिन अपने मन के अंधकार को इससे हम किस प्रकार से दूर करें? तो इसका एकमात्र उपाय है और वो है भगवद गीता एज इट इज या यथास्वरूप, जिनको शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है। इसके नियमित अध्ययन से ही हमारे मन के अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। तो आज आइए इन छोटे बच्चों के मुख से सुनते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार से भगवद गीता ने अंधकार को मिटा करके उजाला और एक उम्मीद जगा दी है। निर्भय हो गए हैं बच्चे और अपने स्वरूप को समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए और सबका सहयोग भी चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि सभी भगवद गीता का अध्ययन करें। Hare Krishna everyone, my name is Tyra and I study in class 5th, and in today's video I am going to tell everyone something about myself. I used to enjoy eating non-veg food. Everything was my favorite. But after reading Bhagavad Gita by Srila Prabhupada, then I realized that the soul in me and the soul in every animals and birds are the same. When I cannot give life, then how can I take away life? When I left eating non-veg food, so then many of my relatives, they were very much concerned about my health and asked my mother that she is growing, from where she will get proteins. And everybody knows that the sources of proteins are in mutton, fish and eggs. But now I want to tell everyone that in pulses, in rice, in soyabean, in rajma, in paneer and many more, it's a very rich source of proteins, and my mother cooks it in such a tasty manner. We have even left eating onion garlic because Krishna says onion garlic food he does not accept. So thank you Srila Prabhupada for making us understand what to eat and for showing us Shri Krishna. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. We read so many books like math, science, novels, fictions, etc. And those books may be written by great scientists or philosophers. But who is greater than the God? Bhagavad Gita is the supreme science spoken by the supreme scientist Lord Shri Krishna. Bhagavad Gita is the manual for human form of life. As we purchase any equipment from the market, we get a manual along with the product, that how to use that equipment. Similarly, we have got this human form of life and how to live this human form of life. Bhagavad Gita teaches that. Bhagavad Gita teaches us that what is the purpose of human form of life. What is the goal of human life, form of life? What is the science of the soul? What is the art of living? What is the art of dying? And Bhagavad Gita is also a very interesting discussion between Lord Shri
श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमें भगवत गीता एज इट इज़ रोज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो इसे स्वयं पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि ये बुक मैंने नहीं लिखी है, तो कृष्णा ने मुझे स्वयं डिक्टेट किया है और मैंने इसे लिपिबद्ध किया है। क्योंकि ये केवल एक बुक नहीं है, ये तो साक्षात कृष्णा है और कृष्णा से तो हमें रोज़ मिलना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी बुक है कि कोई भी पेज खोलकर बैठ जाइए, आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिलते हैं। कोई भी समस्या हो, कृष्णा जी सारे सवालों के जवाब इस बुक के माध्यम से देते हैं। मान लीजिए आपको कोई समस्या हो गई, जैसे कि फ्रेंड से अनबन हो गई, मम्मी पापा से गुस्सा हो गए, या किसी ने आपके काम में कोई कमी निकाल दी, तो हम क्या करते हैं, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। मगर हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें भगवत गीता खोलनी चाहिए और अपने गुस्से को शूट सटाट उड़ा देना चाहिए। इसी बात पे भगवत गीता पढ़िए और सभी सवालों के जवाब पाइए। Hare Krishna. This is Shubham, and I am really thankful to Dr. Sangeeta Roy ma'am, and I appreciate your step. Your channel name is Bhagavad Gita as it is. This is not a channel, it is a platform where we are learning our basic moral. Students as just like me, we do not have a time sufficient in our daily schedule, but weekly at the end, Sunday, you are providing this beautiful lectures, some stanzas from the Srimad Bhagavad Gita. I appreciate your step, and I request everyone, those who wants to bring a paradigm shift in their life, wants to do something more beyond their limit for the benefit of to the society and also for the personal enhancement, personality enhancement. So I think you must follow Srimad Bhagavad Gita as it is, this YouTube channel which is running by Dr. Sangeeta Roy ma'am. My best wishes are with you ma'am. राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता यथास्वरूप पढ़ के पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते, नैनम छिन्दन् शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है, आत्मा को अग्नि जला भी नहीं सकती है, आत्मा को जल गीला भी नहीं कर सकता है और आत्मा को हवा सुखा भी नहीं सकती है। इस प्रकार हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है कि आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित है और हम क्या हैं, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है जो जिसका कभी नाश नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते, ममेव अंश जीव लोके, प्रति एक अंश मेरा ही जीव और वो ही मेरे परमानेंट माता पिता भी हैं। और इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हम डरते नहीं हैं और हमें मृत्यु का भय भी नहीं होता है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी भगवत गीता यथा स्वरूप पढ़ें और अपने स्वरूप को पहचानें। यह सब ज्ञान मुझे भगवत गीता यथा स्वरूप पढ़ के और मेरे जगत गुरु शीला प्रभुपाद के माध्यम से हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जागो प्राणी जागो और अपने स्वरूप को भगवत गीता पढ़ के अपने स्वरूप को पहचानो। Hare Krishna to all of you. A person's mind is a place where emotions reside, and emotions are the ones which makes us humans, but sometimes emotions can be very, very harmful. So where to learn this art to control our emotions properly? This book known as Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, it teaches us how to control our emotions and how to deal with them properly.
without emotions, we are worse than animals, and with extreme emotions also, we are worse than animals. So we should be able to live a very balanced life. We should be able to control our emotions, and it is all given in Bhagavad Gita. So yes, I suggest you all to read Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, and it's my personal experience on the basis of which I'm suggesting you to read Bhagavad Gita. Hare Krishna. आज मैं आप सभी को श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में बताती हूँ, वो कौन थे और उन्होंने जो है हमारी लाइफ में आकर हमें कितना चेंज कर दिया है। और श्रीला प्रभुपाद जी जो है, उनका पूरा नाम श्रील भक्ति वेदांत स्वामी है और ये 20वीं सदी के गौड़ीय वैष्णव गुरु थे। और कृष्णा जी की कृपा होने से जो है इन्हें हम लोग कृष्णा कृपा मूर्ति भी कहते हैं। और इन्होंने जो है 70 साल की उम्र में भव विशाल सागर को पार करके जो है धर्म प्रचार करने के लिए गए थे। और जैसे गुरु जी ने जो है धर्म प्रचार किया, वैसे ही हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और उन्होंने हमें भगवद गीता एज इट इज जो है उन्होंने दी है। उसके आने से जो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए, हमें कृष्णा भक्ति प्रदान हुई। पहले हम बहुत ही आलस से और अपने कर्म को करते थे, पर जो है मुझे कैसे कर्म करने चाहिए ये मुझे मालूम नहीं था। ये हमें कृष्णा प्रभुपाद जी के आने से पता चला। और जब श्रीला प्रभुपाद जी आए तो हमारी लाइफ के अंधकार दूर हुआ और हम जो है सारी कठिनाइयों को आसानी से पार कर ले जाते हैं। और भगवद गीता को रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ 16 माला करते हैं। और जितने भी हमारे कृष्णा डिवोटीज फ्रेंड हैं, हम सबको बहुत आदर सम्मान से रहते हैं और हमें किसी चीज़ का जो है टेंशन नहीं रहता, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। इसलिए हम अपने श्रीला प्रभुपाद जी को इन्होंने हमें एक गुरु माँ है, उनको वो दिया संगीता मैया, और उनके आने से हम लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो Hare Krishna. So, what to speak about Prabhupada ji, what to speak about ISKCON, what to speak about Krishna. Everything is getting wonderful day by day. The things are like, we can understand everything when we see from a different perspective, when it is given, when we read literature especially. So my experience, I just want to say that when I started reading Srila Prabhupada ji's books, everything was changed from a negative person, from a sort of person where I used to go to the people and say, please help me, I'm very much troubled. I started helping others. That's what the change is given to me. So that is all about it. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Every teenager at every point needs some sort of guidance because we are influenced by a number of hormones like serotonin, dopamine, oxytocin and many hormones like that. So where we can get the guarantee that we are getting the right guidance? Yes, we have one. That's Bhagavad Gita. Bhagavad Gita as it is written by Sri Prabhupada ji. It is an assurance that whatever is written inside it, it assures you that you are on the right track, moving on the right track and getting the correct guidance what to do and what not to, because every teenager needs a help, a guidance, a mentor. And Bhagavad Gita, it's my personal experience from which I am telling everyone that yes, it is not just a scripture, it's not just a religious book, it's a life guide that helps an individual at every point in the life. Thank you everyone. Hare Krishna. राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज नॉट ओनली अ बुक, इट्स अ मेडिसिन फॉर ऑल। जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसे पढ़कर हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और जो भी हमारे अंदर की सब बुराइयां हैं उसे त्याग सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे जो है दिन में 2 बार पढ़ें, क्योंकि जो है हमें भक्ति वेदांत स्वामी जी ने, श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें यही कहा है कि हम इसे मेडिसिन की तरह लें और इसे दिन में 2 बार पढ़ें। राधे राधे, मेरा नाम सूफिया खातून है और मुझे भगवद गीता के श्लोक याद करना और उसको सुनाना बहुत अच्छा लगता है। अब तक मुझे 23 श्लोक याद हो गए हैं और मैं हर हफ्ते एक नया श्लोक याद करती हूँ। आज मैं आपको
पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 15 सुनाने जा रही हूँ। पांचजन्य हि ऋषिकेशो दीवुदन्तं धनञ्जय पाण्डो दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माविकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने दीवदंत शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडव नामक भयंकर शंख बजाया। आप लोग भी याद करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे। राधे राधे माय ऑल कृष्णास डिवोटी। जैसा कि आजकल हो रहा है कि हमें थोड़ा सा भी दुख होता है, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, हम फटाक से पंडित जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं बाबा जी हमें ये दिक्कत है, बाबा जी हमें ये परेशानी है। बाबा जी फटाक से मंत्र फूंकते हैं और कहते हैं बेटा ग्रह नक्षत्र भारी है आपके ऊपर, ये करो वो करो, 2-4 ऑप्शन दे देते हैं। उन ऑप्शन से ठीक होगा या नहीं ये गारंटी नहीं देते। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको गारंटी दूँ तो जी हाँ, गारंटी है भागवतम। भागवतम क्या है? भागवतम है स्वयं श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण जिन्होंने यशोदा मैया को छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे, वही श्री कृष्ण है भागवतम। अब भागवतम पढ़िए, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें आपके सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा आपको। और श्रील प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पे चलिए। वो रास्ते हैं, पहला जुआ नहीं खेलना है, दूसरा शराब नहीं पीना है, तीसरा अवैध संबंध नहीं बनाना, चौथा मांसाहार से दूर रहना है। इन चारों नियम को यदि आप फॉलो करते हो, ये केवल एक के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ज़रूरी है। अगर आप श्रील प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पे चलते हो, भागवतम पढ़ते हो, उसे फॉलो करते हो, तो आपको आई एम श्योर किसी भी पंडित के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। मेरा नाम सुमन है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और आज तक हमने विद्यालयों में जो भी पढ़ा है वो सिर्फ हमने अपने शरीर से रिलेटेड ही पढ़ा और जाना है। पर जब से हमारी लाइफ में श्रील प्रभुपाद गुरुजी आए, उन्होंने हमारे जीवन को एक नया मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने हमें भक्ति सिखाई है और हमें कृष्णा से मिलवाया है और हमें भगवत गीता दी, जिसका ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जब हमने भगवत गीता पढ़ी, उसमें हमें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उन्होंने कहा है कि कृष्णा कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौनम जरा तथा देहांतरः प्राप्तिर धीरज तत्र नमुयते। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर अन्य अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। तो जैसे कि पहली आ जाती है हमारा बचपन बाल्य अवस्था, और दूसरी आ जाती है कुमार अवस्था जिसमें हम यंग एज के होते हैं, और तीसरी आ जाती है हमारी जरा, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान है वो व्यक्ति अपने शरीर के अंत समय में इतना दुखी नहीं होता है, वो अपने शरीर का अंत देखकर शोक नहीं मनाता है। और इस चीज़ का ज्ञान सिर्फ एकमात्र भगवत गीता में ही दिया गया है, अन्य किसी चीज़ में नहीं दिया गया है। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप, जब से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया है तब से मैंने ये जाना है कि हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें क्या उपदेश दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए जो कि हमारा कर्तव्य है, और हमें कर्म करते हुए फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम कर्म करते हुए फल में आसक्त होंगे तो हम अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमें निराशा भी प्राप्त हो सकती है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हमारे श्रील प्रभुपाद ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हम उन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और कोई ये
डिफ़िकल्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बहुत ही सरल है, जिसे हम फॉलो करेंगे हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। हरे कृष्णा। वैसे तो हमारा काम है लोगों का अकाउंट्स मेंटेन करना, बैलेंस शीट वगैरह बनाना, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हों, हम ये करें, हम वो करें, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम इसे वापस ले जा सकते हैं? नहीं। खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हम वापस ले जा सकते हैं, वो है कृष्ण नाम रूपी धन। एक बात बताइए, क्या इंडिया की करेंसी बाहर या अमेरिका में कहीं चलती है? नहीं। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि जो इस मृत्यु लोक का धन है वो वहाँ चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है, वो है 16 माला का जप करना। ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ये माला नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हैं उंगलियों में गिन करके, और फिर भी आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसे मन में भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का आदत होती है कि वो कोई भी गाना मन में गुनगुनाते रहते हैं, तो क्यों ना हम महामंत्र ही गुनगुनाएं। Krishna consciousness is described very nicely in the Bhagavad Gita. Perhaps you know Bhagavad Gita. I understand you are reading Bhagavad Gita. So, Bhagavad Gita is the guide how to become Krishna conscious. Our only request is that you chant Hare Krishna mantra and you will feel very much happy. There will be no anxiety. Chanting of this Hare Krishna mantra will make you more and more happy, free from material anxieties, and if we continue this process, then everything will be clearly understood about spiritual life. Even God has got this discrimination. He says, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. There are bad elements. In God's mind there is good element, bad element. So we are part and parcel of God. We must have also the same sentiment. We cannot avoid it.